Good afternoon, boys. Today we'll discuss the stages of combustion in SI engine. How the stages of combustion are carried out in SI engine. Now let us see the introduction of this chapter. New chapter है हमारा. पहला chapter introduction to IC engine था. Second chapter fuels and carburetors and their fuel injection systems and their uses. और ये है fuel combustion processes in SI engine. Now the combustion may be defined as a relatively rapid chemical combination hydrogen and carbon in fuel, combination of hydrogen and carbon in fuel with oxygen in air, resulting in liberation of energy in the form of heat. The following conditions are necessary for combustion to take place. First condition, necessary condition, is the presence of combustible mixture. Some means to initiate. Second is some means to initiate the mixture. Third essential conditions are stabilization and propagation of flame in the combustion chamber. Now in SI engine, the carburetor supplies the combustible mixture of a petrol and air and spark plug which initiates the combustion stages. Now in SI engine, carburetor supplies the combustible mixture and the SI engine carburetor supplies the combustible mixture of petrol and air and spark plug which initiates the combustion. Now ignition limits for the SI engines are nothing but ignition of a charge is only possible within the certain limits of fuel air ratio. Ignition limits corresponds approximately to those mixture ratios at lean and rich ends of the scale, where heat released by the spark is no longer sufficient to initiate combustion in the neighboring burnt mixture. For hydrocarbons, the fuel air ratio is 1:15, and hence the fuel air ratio must be 1:30 and 1:7. Now these are the ignition limits for the hydrocarbons. This mixture is 0 to 7 is 2 reach, 7 to 9, 9 to 14.5, 21, 30 and and so on. Now theories of combustion in SI engine. How the theories of different combustion in SI engine are there. Combustion in SI engine may roughly divided into two general categories. First is normal combustion and second is abnormal combustion. The theoretical diagram of pressure crank angle diagram is shown below, that is A to B is a compression process, B to C is the combustion process and C to D is an expansion process. In an ideal cycle, it can be seen from the diagram, the entire pressure rise during the combustion takes place at the constant volume of top dead center. However, in actual cycle, this does not happen. Now, this is the theoretical combustion cycle of SI engine combustion. Now, the theoretical cycle is nothing but crank angle versus theta. Okay, the crank angle versus the process is कौन से हैं. A to B is a compression, B to B is a pressure and C to D is the expansion process. Now Richard's theory of combustion is there. Sir Ricardo, known as the father of the engine, this engine research describes the combustion process can be imagined as if it is developing in two stages. Okay. Now the growth and development of self-propagating nucleus flame, that is called as the ignition lag. Second is spread of the flame through the combustion chamber. Now there are three stages. According to that, there are three stages of combustion in SI engine. According to the Ricardo, there are three stages of combustion in SI engine as shown in figure, which are ignition lag stage, second is flame of propagation stage, third is afterburning. Now this is the diagram through which you will clearly visible that the combustion in SI engine is how it is possible. Now there is a crank angle versus pressure in bar diagram. On the x-axis we drawn a crank angle, that is rotation of the crank shaft. On y-axis we have drawn the pressure in bars. The center is top dead center, and on the right of it's 0, 20, 40, 60, 80
0, 20, 40, 60, 80. These are the degrees on the right and left. That is the rotation of the crankshaft before TDC is 80 degree, before DC 60 degree, before TDC, and 40 degree, 20 degree before TDC. This is after 20, and so on. Now let us see the stages. First is ignition lag. What is called as a ignition lag stage? There is a certain time interval between the instant spark and the instant where there is a noticeable rise in pressure due to the combustion. मतलब आपके स्पार्क आपका जाने तक टाइम इंटरवल एंड इंस्टेंट वेयर देयर इज अ नोटिसेबल राइज इन प्रेशर. कंबशन के बाद प्रेशर में कुछ तो भी नोटिसेबल राइज होगा. ये जब आपको पता चलेगा, ये जब होगा तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द कंबशन इग्निशन लैग. नाउ द टाइम लैग इज कॉल्ड द इग्निशन लैग. जो टाइम है स्पार्क होने के बाद में और कंबशन पूरा होने तक का जो टाइम है वो टाइम लैग है, उसे हम कहेंगे इग्निशन लैग. Now, ignition lag is a time interval in the process of chemical reaction during which molecule get heated up to the self ignition temperature. मतलब जो टाइम मिल रहा है आपको जब से स्पार्क आपका इग्नाइट होगा, तो टाइम इंटरवल इन बिटवीन स्पार्किंग एंड द जो मॉलिक्यूल्स है आपके पेट्रोल के या जो आपका फ्यूल है उसको सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर रहता है. एक self ignition temperature is that temperature on which the fuel is self ignited. मतलब खुद से वो इग्नाइट करेगा. वो जो टाइम लैग है उतना, जब वो स्पार्क गिरेगा आपके कंबशन चेंबर में जाएगा और वो सेल्फ और जो प्रेशर बढ़ेगा तो फ्यूल वो अटेंड करेगा. जब तक वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेंड करेगा, वो जो टाइम है उसे इग्निशन लैग हम कहते हैं. गेट इग्नाइटेड एंड प्रोड्यूस अ सेल्फ प्रोपोगेटिंग न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल्फ प्रोपोगेटिंग न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम मतलब बढ़ाना, उस जो फ्लेम है, जो चिंगारी है, उसको बढ़ावा देना, तो उसे कहेंगे हम सेल्फ प्रोपोगेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द फ्लेम. नाउ इट गेट्स इग्नाइटेड एंड प्रोड्यूस अ सेल्फ प्रोपोगेटिंग न्यूक्लियस ऑफ द फ्लेम. The ignition lag is generally expressed in terms of crank angle θ1. क्रैंक एंगल में वो बताया जाएगा. समझो था 20 डिग्री, सपोज XYZ डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, सब जो भी है वो. नाउ द पीरियड ऑफ इग्निशन लैग इज शोन बाय द पाथ A to B इन दिस फिगर. नाउ ये है आपका स्टार्टिंग ऑफ रोटेशन. ये यहाँ से यहाँ तक प्रेशर बढ़ेगा, थोड़ा कंप्रेशन प्रेशर बढ़ेगा, थोड़ी देर तक ये बढ़ेगा. ये पॉइंट A to B इज कॉल्ड एज द इग्निशन लैग ऑफ योर स्टेज. दैट इज पॉइंट ऑफ इग्निशन A है एंड पॉइंट ऑफ कंबशन B है. मतलब पॉइंट ऑफ इग्निशन से पॉइंट ऑफ कंबशन तक कुछ तो डिग्री वो क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा, और वो जो रोटेशन का एंगल है वो होगा उसका इग्निशन लैग का मेजरमेंट, विच इज़ θ1. यहाँ दिखाई देगा आपको ये θ1. ओके, एंड दिस इज θ1 इज कॉल्ड एज हेयर इग्निशन लैग ऑफ दैट process. Now ignition lag is very small and lies between 0.00015 to 0.0002 seconds. मतलब ये आपके सेकंड के बहुत ही फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन के सेकंड्स में आपको दिखाई देगा वो इग्निशन लैग. द इग्निशन लैग ऑफ 0.02 सेकंड corresponds to 35 degree crank rotation when the engine is running at 300 rpm. मतलब 0.02 सेकंड्स का भी इग्निशन लैग टाइम में रह गया तो वो आपका क्रैंक एंगल का रोटेशन 0.35 डिग्री तक पीछे रखेगा. आपके जो प्रीडिटरमाइन जो साइकिल टाइम है उससे 35 डिग्री पीछे रखेगा.
एंड व्हेन द इंजन इज रनिंग एट 3000 आरपीएम, मतलब इंजन की स्पीड जब 3000 आरपीएम होगी तो उस टाइम वो इग्निशन लैग 35 डिग्री पीछे रहेगा। द एंगल ऑफ एडवांस इंक्रीज्ड विद द स्पीड, वैसे ही आपका एंगल ऑफ एडवांस कह रहे कैसा होगा, स्पीड के साथ इंक्रीज होगा। दिस इज द केमिकल प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फ्यूल, टेम्परेचर एंड प्रेशर, the proportions of exhaust gas and rate of oxidation or burning. Now this is the ignition lag process. compression line, ये compression line होगी, जब आप compression बढ़ावा देंगे compression को तो ये compression line आपकी dotted में दिखाई देगी। और this is from A to B is the ignition lag. Point A is the point of ignition, point B is the point of combustion, theta is the ignition lag. Okay. Now second is flame propagation stage. ऐसा इंजन कंबशन में सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेज होगी ये फ्लेम प्रोपोगेशन स्टेज। ये आपको इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऐसा इंजन का कंबशन कैसा होता है, उसका बिहेवियर क्या है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। वंस द फ्लेम इज फॉर्म्ड एट बी, बी को जब फ्लेम फॉर्म होगी, पॉइंट ऑफ कंबशन लिखा है यहाँ, तो वहाँ आपकी बी की फ्लेम फॉर्म होगी। इट शुड बी सेल्फ सस्टेन्ड, जितने मतलब वो जो फ्लेम है वो सेल्फ सस्टेन्ड होनी चाहिए, सेल्फ खुद से वो ध्यान रखना चाहिए उसमें। मस्ट बी एबल टू प्रोपोगेट थ्रू द मिक्सचर, मतलब वो प्रोपोगेट होनी चाहिए थ्रू आउट द कंबशन चैम्बर और थ्रू आउट द मिक्सचर। दिस इज पॉसिबल व्हेन द रेट ऑफ हीट जनरेशन by the burning is greater than the heat lost by the flame to the surrounding। ये कब पॉसिबल होगा कि वो सेल्फ प्रोपोगेट होना चाहिए? ओनली व्हेन द रेट ऑफ हीट जनरेशन बाय द बर्निंग, रेट ऑफ हीट जनरेशन ज़्यादा होगा देन द हीट लॉस्ट बाय द फ्लेम, जितनी भी हीट लॉस्ट उस फ्लेम ने की है उससे ज़्यादा रेट ऑफ हीट जनरेशन ज़्यादा होंगी, तभी वो प्रोपोगेट होगी। मतलब ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है और वेस्ट कम हो रही है, लॉस्ट कम हो रही है टू द सराउंडिंग, तब भी वो फ्लेम प्रोपोगेशन अच्छी तरह से होगा। नाउ आफ्टर पॉइंट बी द फ्लेम प्रोपोगेशन इज एबनॉर्मली लो एट द बिगिनिंग एज हीट लॉस्ट इज मोर देन हीट जनरेटेड। पॉइंट बी में प्रोपोगेशन इज एबनॉर्मली बहुत लो होगा एट द बिगिनिंग में वो बहुत लो होगा, एज द हीट लॉस्ट इज मोर दॅन द हीट जनरेटेड, हीट लॉस्ट हे जास्ती असतं सुरुवातीला हीट जनरेटेड शिवाय, त्याच्यामुळे ते कमी असतं। ओके, फ्लेम प्रोपोगेशन कमी होतं। देअरफॉर प्रेशर राइज इज ऑल्सो स्लो एज अ मास ऑफ फिक्चर बर्न इन इज स्मॉल। नाउ देअरफॉर इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड एंगल ऑफ एडवांस 30 to 35 डिग्रीज। जो भी है वो एंगल ऑफ एडवांस देना उसको इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका इग्निशन लैग भी वो भर जाता है और फ्लेम प्रोपोगेशन में भी वो यूटिलाइज हो जाता है। इफ़ द पीक प्रेशर टू बी अटेंड 5 to 10 डिग्रीज आफ्टर TDC, अगर वो पीक प्रेशर अटेंड करेगा 5 to 10 डिग्रीज आफ्टर TDC तब। नाउ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्रैंक टू रोटेट थ्रू एन एंगल θ2, क्रैंक को एंगल θ2 से रोटेट होने के लिए जो टाइम लगता है इज नोन एज द कंबशन पीरियड ड्यूरिंग विच प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम टेक्स प्लेस। दिस इज B to C and this is combustion line, okay, and this is the time in between which is propagation of flame which should be takes place in this manner or in this stage. Now next is after burning, last stage of your SI engine combustion is after burning. So what is that after burning? The combustion will not stop at point C, जो भी combustion है वो point C को ख़त्म नहीं होगा। It will be continue after attaining peak pressure, peak pressure attain करनी है, peak pressure का point है आपका C, highest pressure, peak pressure means highest pressure in your throughout the process. It will attain a peak pressure attaining, and this combustion is known as the after burning of the fuel.
दिस जनरली हैपन्स व्हेन द रिच मिक्सचर इज सप्लाइड टू द इंजन। आफ्टर बर्निंग कब होती है? जब बहुत ही रिच मिक्सचर उसमें आपने प्रोवाइड किया है। तो ये हो गया है आपका स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन। एसआई इंजन में कौन से स्टेजेस है वो देखा हमने, फिर से मैं आपको बताऊंगा। दिस इज़ दी वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर 80, 60, 40, 20 और TDC 20, 40, 60, 80 और ये प्रेशर बार्स में होगा। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ योर सक्शन प्रेशर। सक्शन में आप ये लोगे, लेने के बाद कंप्रेस करोगे। कंप्रेस के बाद कंप्रेस में मुझे मतलब पिस्टन आपका धीरे धीरे TDC तक जा रहा है। TDC तक जा रहा है मतलब आपका प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर कब बढ़ेगा? जब आप कंप्रेस करोगे फ्यूल। नाउ सो दिस टोटल फेज इज द कंप्रेशन फेज। टोटल दिस टू दिस स्टेज इज कंप्रेशन। मतलब कंप्रेशन से 80 डिग्री बिफोर, कंप्रेशन से 60 डिग्री बिफोर, 40 डिग्री बिफोर, 20 डिग्री बिफोर, यहाँ तक आपको कंप्रेशन से 80 डिग्री बिफोर पॉइंट ऑफ इग्निशन पता चलेगा। मतलब वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा आपका पूरा। पिस्टन की मूवमेंट यहाँ तक है तो आपका प्रेशर विच इज़ एट द हाइट, मतलब हमने स्पार्क वहाँ इग्नाइट किया है। ओके, नाउ ये दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इग्निशन। जब वो इग्निशन बढ़ेगा और कंप्रेस करने के बाद दिस इज पॉइंट ऑफ कंबशन। ये पॉइंट ऑफ बी इज द कंबशन एंड दिस इज द C इज द पॉइंट ऑफ पीक प्रेशर एंड D इज द लास्ट पॉइंट एग्जॉस्ट के बाद का। मतलब A to B is the ignition lag, B to C is the combustion process and C to D is the after burning. And these three stages, that is ignition lag, propagation of flame and after burning, are the important stages in SI engine combustion process. ओके, ये अगर आपको पता चल गया तो आपको SI इंजन का कंबशन पूरा के पूरा समझ में आएगा। Now A, the point of ignition is at 20 degree before TDC. Again your point of combustion is somewhat about 8 to 10 degree before TDC. पीक प्रेशर का आपका 18 डिग्री बिफोर TDC एंड बाद में आफ्टर बर्निंग आपकी नियर अबाउट 40 डिग्री आफ्टर TDC तक चलेगी। तो ये आपको एंगल्स या थोड़ा इसका बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ दी ignition lag, what is the combustion process or flame propagation and what is the after burning। इसके ऊपर ही आपका SI का पूरा के पूरा स्टेजेस आपको पता होंगे और इसके ऊपर ही उसका वर्किंग होता है। मतलब थेरोटिकल साइकिल, दिस इज द थेरोटिकल साइकिल दैट इज अप टू TDC। जब कंप्रेशन कब तक होना चाहिए? जब तक TDC तक जाता नहीं आपका पिस्टन। जब पूरा गया तो समझेंगे हम कंप्रेशन एंड हो गया। दिस इज A to B, B to C तक क्या है? कंबशन, विच इज जब ये अज्यूम किया है, ये आइडियल साइकिल का कंबशन प्रोसेस है। जब TDC तक है आपका पिस्टन, TDC में, तो आपका ये B to C में कंबशन होना चाहिए, विच इज़ द हाईएस्ट प्रेशर ऑफ योर सिस्टम। और जब वो TDC से निकल रहा है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो C to D वो एग्जॉस्ट होना चाहिए या आफ्टर बर्निंग। लेकिन ऐसा होता है क्या? दिस इज थेरोटिकल साइकिल। थेरोटिकली जो लिखा है वो कभी भी पूरा नहीं होता इस इंजन कंबशन में, इसीलिए ये प्रैक्टिकल साइकिल हमने यहाँ डिस्कस की है। दिस इज़ प्रैक्टिकल साइकिल और एग्ज़ाम में पूछा गया आपको, तो दोनों भी अब अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कंबशन इन SI इंजन, तो थेरोटिकल की भी डायग्राम निकालनी है और प्रैक्टिकल की भी निकालनी है। दोनों के भी थोड़ा थेरोटिकल के बारे में थोड़ा कम लिखना है, लेकिन जो प्रैक्टिकल साइकिल है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बतानी होगी, तब भी आपको अच्छे से इंटरप्रेट होगा या आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एवरी टाइम और एवरी पेपर, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कंबशन इन SI इंजन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्शन B में का है, सॉरी सेक्शन A में का ही है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ना कि आपके सिर्फ एग्ज़ाम के ज़रिए में, लेकिन आपको बाद में भी इसमें बहुत ही अच्छा आपको
करियर भी बना सकते हो आप इंजन के कंस्ट्रक्शन में या इंजन डिज़ाइन इंजन के बारे में। तो ये थोड़े ध्यान में रखो आप थोड़ी ये चीज़ें। आज हमने देखा व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन। कल देखेंगे हर एक स्टेज को, जैसे कि इग्निशन, लैग, फ्लेम प्रोपोगेशन एंड आफ्टर बर्निंग, हर एक स्टेज को ये बाकी के फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं और उसका साइकिल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। So this is what up to the stages of combustion in SI. Thank you.